आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और सत्र के शुरू होते ही हंगामे भी शुरू हो चुके हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगहों पर नीट पेपर लीक का मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा गर्म रहा और इन दोनों ही सदनों के अंदर यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगहों पर विपक्ष ने जोरदार तरीके से सवाल भी उठाया और सरकार को घेरने की भी कोशिश की। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरे प्रकरण को लेकर के सरकार को घेरा और साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी के जो छात्र थे उन पर लाठीचार्ज का मुद्दा भी उठाया और कहा कि सरकार छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन छात्रों की आवाज दबेगी नहीं बल्कि विपक्ष उसे पुरजोर तरीके से सदन के अंदर उठाएगा। We have given already notice and spoke about that. The NEET examination, which has taken several lives, and government is not taking care of students. और ये तो स्टूडेंट्स को मारने का काम सरकार कर रही है। भाई आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करने को नहीं आता तो छोड़ो, दूसरे और किसी को दो। तो ये सरकार आज स्टूडेंट्स पे जो लाठीचार्ज की, नौजवान बच्चों पे जो किए, ये डेमोक्रेसी पे हल्ला है। और जो लोग अपने बात रखने के लिए दिल्ली आते हैं उनके ऊपर ऐसी लाठीचार्ज अगर होती है और उनको अगर ऐसा डराया जाता है तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। और सरकार इसके बारे में सोचने के लिए हम 10 बार बोले, लेकिन वो सरकार सोच रही नहीं, उल्टा बच्चों को, नौजवानों को तंग कर रही। एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, दूसरे तरफ बच्चों के एग्जामिनेशन बर्बाद हो रहे। तो ये सत्ता में रहने के लायक नहीं है। सर, बहुत सारे इश्यूज आप लोगों ने उठाने की बात की है इस बार। चंदा चोरी, ये भी हमारा इश्यू है, हम उठाए हैं। और चंदा भगवान के नाम पर उन्होंने चंदा जमा किए करोड़ों रुपए, और करोड़ों रुपए की लूट हो रही है। राम भक्त क्या है, भगवान के नाम से पैसे वसूल कर रहे हैं और भक्तों को बांट रहे हैं, उनके भक्त चोरी कर रहे हैं उसके। और सारा मोदी साहब इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए, क्योंकि खुद मोदी साहब ने ट्रस्ट बनाया, खुद मोदी साहब ने लोगों को चुना, नॉमिनेट किया। This government totally insensitive on people's issues. You can see the pain of the family of this country on NEET and CBSE examination leakage. Basically, the parents are very much worried about the future of their students, their sons and daughters. Our minimum demand is to resign the education minister and have a discussion on NEET to CBSE exam. How to improve this exam system? How to improve this exam system? How to stop this leakage on examination? How to retain the credibility of the examination system? There should be a thorough discussion on that. There should be an action that. Dharmendra Pradhan is the cold, responsible guy. This government is totally insensitive on that. The government is not ready for a discussion. The speaker is not allowing us to speak on this issue. Okay, you can understand. You speak 1 or 2, 3 minutes. They are not ready to hear the issue. NEET is not an issue. CBSE leakage is not an issue. Number 2, Chanda Chori. Chanda Chori, that is also hurting the complete believers of Lord Rama. People are completely pained. What is happening there? That trustee is nominated by Government of India under the supervision of Prime Minister. And their trustee is responsible for this Chanda Chori. That's also government is not allowing for a discussion. Therefore, government is very much uncomfortable for discussing either Chanda Chori or NEET CBSE exam leakage, because they are on back foot completely. But they should, this parliament is the place where debate and discussion has to happen.
People are elected for debating these issues. The government is not ready for a debate at all. They are not allowing to speak on 2 minutes on NEET CBSE exam leak. They are not allowing us to speak on this issue. The agenda of government. I don't know. We don't know why they call the parliament. These are the very much pertinent, bigger issues of the people of this country. They are not ready. Our minimum demand is to there should be have a proper design discussion on these two subjects immediately. This is what our demand. Government is not ready. What about the DMK? What about the DMK? Sir? You people are this only. If whether you are agreeing or this issue or not, I am not going to fall in your agendas. Every political party will have their own decisions. Our position aim is to discuss these two major issues: CBSE, NEET, exam leakage. Number 2, Chanda Chori. Discuss. LOP Rahul Gandhi. They have the majority in the house. Why they are worrying about the discussion? LOP Rahul Gandhi and you also going to hospital to meet Sonam Wangchuk and Jantar Mantar also. That party will decide. Sir, Prime Minister has said certain... That also you have to understand. A person, combat mein, for a genuine cause, sitting for hunger strike for 20 days, this government should show some sensitivity. Human lives are important for everybody. And issues are also that much important. What you are doing, you are using the police, you are using Delhi police and you are using CRPF to stop this type of agitations. You are in a different world, I don't know. This government is in a different world. Still all Nobody can correct all the them. India bloc parties against the delimitation bill. Now the delimitation bill is not come. Let it come and you can see that whether everybody together or not. Last session also you saw that. सांसद थाने में बैठाए हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है कि अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती, बच्चों की बात सुनती। और नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्रेडिबिलिटी किसकी है? किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया में आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे हैं। और आपके यूपी के मुख्यमंत्री ने आपके दिल्ली के ऊपर आरोप लगा दिया, SIT बना करके क्या तक तैयारी कर दी कि मंदिर में चोरी हुई। भाई सच्चाई किसने खोली? SIT ने खोली कि SIT से चंदा चोरी हो गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नीट आप एग्जामिनेशन नहीं करा रहे हो, एग्जामिनेशन कराया उसके बाद भी शिकायतें हैं। तो आप क्या किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हो? नौकरी रोजगार दिए नहीं। अगर नौकरी रोजगार दिए होते इतने बच्चे क्या यहाँ सड़कों पे आते हैं? सर आज की मीटिंग को लेकर कुछ बोलेंगे सर? मीटिंग हाउस एडजॉर्न होता है तो एक दूसरे से लोग मिलते हैं, हाउस एडजॉर्न के बाद मिलते हैं, उसमें क्या है? लेकिन अभी सबसे पहला सवाल ये है कि नीट के बच्चों को न्याय मिले और यहाँ के जो बच्चे जो आए आंदोलनकारी उनके साथ व्यवहार अच्छा हो। ये जो आंसू गैस, लाठी, करंट या पत्थरबाजी ये पुलिस कर रही है, ये व्यवहार करेगी पुलिस? सोचिए। ऑपोजिशन को कोऑपरेट करना चाहिए हाउस चलाने के लिए। ये जो व्यवहार पुलिस का है ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। मंदिर को लूटना, विश्वविद्यालयों को बंद करना और छात्रों की ये प्रताड़ना, ये तो अंग्रेजों ने भी नहीं की हो। अंग्रेजों ने तो सुना है, अगर कोई धरना प्रदर्शन में बैठा है तो उसकी बात सुनी। इसीलिए गांधी आज दुनिया में पूजे जाते हैं। गांधी की तस्वीर प्रतिमा दुनिया में है इसीलिए कि उन्होंने रास्ता दिखाया कि ये आंदोलन का रास्ता है। अगर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को लेकर के बैठे उनके साथ ऐसा व्यवहार आप करेंगे? बात करनी चाहिए सर सरकार को इन प्रदर्शन? सरकार को बात ही नहीं करनी चाहिए। और एक मंत्री को कितने दिन वहाँ रखोगे आप? क्यों एक जगह में बैठा के रखते हो? जब एक मंत्री एक जगह बैठता है तो अपने आदमियों को सेट कर लेता है और अपने आदमियों को सेट करने के बाद करप्शन बड़े पैमाने पर होता है। आप बदलते रहिए। लोहिया जी यही कहते थे ना, सरकार बदलनी चाहिए उसी तरह जैसे रोटी बदलती है। तो सरकार में बैठे हुए मंत्री तो बदलें। और अभी तो सरकार सम्मानजनक, नहीं तो सम्मानजनक बदलाव सरकार का ना हो जाए कहीं। ये जो आंदोलनकारियों को हटा रहे हैं कहीं सम्मानजनक विदाई सरकार की ना हो जाए। देखिए अफसोस की बात है, पूरी जो सब लोग और पूरा विपक्ष एक साथ खड़े होकर कह रहा है कि आप सदन के अंदर जो जनता के विशेष मुद्दे हैं, छात्रों का जो मुद्दा है, आप उस पे आप सदन के अंदर चर्चा करिए, आप राम मंदिर पे आप चर्चा करिए। लेकिन आज जो हमने दिन में
जो सुबह में जो बिजनेस आता है, जो आज का जो एजेंडा है पार्लियामेंट का, उस एजेंडा में नीट का एक उल्लेख नहीं। आज के पार्लियामेंट के एजेंडा में राम मंदिर का कोई उल्लेख नहीं। आज के पार्लियामेंट के एजेंडा में क्या है? सरकार के उनके दस्तावेज। तो क्या सदन सरकार के दस्तावेज के लिए ही है? और इसीलिए हमने सुबह से ही आपत्ति हमने जताई कि आज के दिन के एजेंडे में डेली एजेंडा जो आता है, डेली बिजनेस जो आता है, उसमें राम मंदिर क्यों उल्लेखित नहीं है? उसमें छात्रों का जो नीट इश्यू है क्यों उल्लेखित नहीं है? और जब तक डेली एजेंडा में नहीं आता या सरकार अपने तरफ से स्पष्ट तारीख नहीं बताती, तब तक आप समझ लीजिए ये सरकार अपने जिम्मेवारी से भागना चाहती है। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की भी आप लोग मांग कर रहे हैं? देखिए, जब उस विषय में तो हम चाहते ही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी नैतिक जिम्मेवारी ले। क्यों? जब भाजपा निर्वाचन से पहले जब मुख्यमंत्री बदल सकती है, तो शिक्षा मंत्री क्यों नहीं बदल सकते? जब गुजरात में निर्वाचन आता है, जब उत्तराखंड में निर्वाचन आता है, तब तो मुख्यमंत्री बदल देते हैं, हरियाणा में मुख्यमंत्री बदल देते हैं। इतना अटूट विश्वास धर्मेंद्र प्रधान जी पर क्यों? क्या और कोई काबिल शिक्षा मंत्री नहीं है? तो इसीलिए सरकार उनकी है, मंत्री उनको ही बनाना है। तो वो आज उनकी विफलता के बारे में पूरे देश और दुनिया में चर्चा चल रही है। ये सुनना ही नहीं चाहते। दिक्कत क्या है कि नीट के ऊपर ये बोलने को तैयार नहीं है, नीट के ऊपर सुनने को तैयार नहीं है। अब बताइए क्या करें? तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल,